Assalamu alaikum. Um, these are the topic in the continuation of a last lecture, that is lecture number 3. It is about the muscles. Now, the lecture number 4 is cover about the nervous control of a muscle. The nervous control for muscles, you can say the nervous control of a muscle tension. The contraction of a whole muscle is graded, which means that the extension and the strength of its contraction can be voluntarily altered. In the nervous control of muscle, we study about the strengthening and the extension of our muscles. There are two basic mechanisms by which the nervous system produces graded contraction. The first is the number of fibers that contract. The second is the rate at which the fiber are stimulated. The nervous system of a muscle's contraction is normally depend on two mechanisms. The first one is the fiber contraction, the number how many fibers are contract during contraction of muscle. The second point is the rate at which the fiber are stimulated. Means the stimulated point which stimulate the muscle fiber. Yeah, you can say the rate at which it stimulate the muscle fiber. Normally, a skeletal muscles, each branch muscles is inverted by the motor neuron. As we know in the last lecture, the skeletal muscles are always commanded by the motor neuron. Each motor neuron may synapse with the multiple fibers. A motor unit consists of a single motor neuron, and all muscles are it controlled by one. It's mean the one of the yeah, you can say a single motor unit consists of a single motor neuron. You can say the command for the single unit is by the single motor neuron, and all of the fiber have their control. Here, the motor units of a skeletal muscles, the spinal cord, these are the spinal cord. In the spinal cord, the motor neuron of the cell body, there is a nerve. The motor neuron of unit 1, this is the motor neuron of unit 2. These are the synaptic cleft. The motor neuron from the unit 2 toward the synaptic terminal. The motor neuron of unit 1 is toward the motor neuron of the axon. This is shown by the blue is the unit of the motor unit of unit 1, and these are the green color show by the unit of motor unit of 2. Okay, these are the muscle fiber and these are the muscle tendon. The spinal cord, the neuron body cells command you stimulate. If these stimulate the single motor neuron, these stimulate a single muscle fiber. As we know in the last slide, that there is a single motor unit is responsible for single muscles fiber command. It's mean a motor unit 1 command to these single fiber and on other for these. And similarly, the motor unit 2 have for the command for fiber 1, there's a single fiber for fiber 2 and fiber 3. These are commanded, all of the fibers are commanded by a single motor unit for their stimulus, or they are stimulated. These are the muscle fiber and the muscle tendon. Okay, recruitment of a multiple motor neuron result in a strong contraction. Okay, at which result from a single action potential in a motor neuron. As in the previous diagram, a motor neuron command to the a single muscle fiber. These motor neuron uh, resulting in the action potential and responsible for production of the action potential.
more rapidly delivered action potential produce a graded contraction of by submission. When there's a multiple you can say multiple motor neuron give the command to the fiber, it's form the contraction, it's formed in a contraction by submission in the form of action potential. Tenderness is a state of a smooth muscles and sustained contraction produced when the motor neuron deliver action potential. Tenderness is a state, is a condition where the smooth muscles and sustained contraction produced by the neuron delivery of action potential. These are cleared by the next slide. ओके जी, अब जब हम बात कर रहे थे टेंशन की, मसल टेंशन की, ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, पेयर ऑफ एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, हम सीरीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, हमारे पास सबमिशन ऑफ टू ट्विचिंग है। हम बात करते हैं टेंशन की, हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे है वो जो वाई एक्सिस पे हमारे पास है वो टेंशन है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल ट्विच, अगर हम बात करें एक्शन पोटेंशियल ऑफ सिंगल ट्विच, द ग्राफ जो कर्व है वो ऐसा होता है कि एक मोटर यूनिट ने एक फाइबर को कमांड किया, एक एक्शन पोटेंशियल किया और उसकी ट्विचिंग हुई, ठीक है। अब हमारे पास समेशन है ऑफ अ टू ट्विचेस, या तो आप कह लें कि एक्शन पोटेंशियल आया टेंशन में दो। अगर हम नॉर्मल सिंगल की बात करें तो हमारे पास ये जो सिंगल ट्विच था वो ऐसा बना हुआ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक और कमांड आया, एक मोटर न्यूरॉन ने एक और कमांड दिया फाइबर को, तो वो क्या किया उसने, जो वो है वो पेयर में कन्वर्ट हो गया, जो एक्शन पोटेंशियल है वो डबल हो गया, जिसकी वजह से बजाय वो एक सिंगल ट्विच बनाने के वो प्रोलॉन्ग हो गया। अगर हम इसकी कर्व की बात करें तो ये प्रोलॉन्ग है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये क्या है, सबमिशन ऑफ ट्विचेस है। ये ट्विचेस इट मे बी के वो टू से ज्यादा हो, जितने भी ज्यादा होगा तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है मोटर न्यूरॉन से और कंटिन्यूस प्रोड्यूस होता जाएगा, तो हमारे पास एक कंडीशन अचीव हो जाएगी जो कि आप कह लें कि जिसको हम टेटेंटिस बोलते हैं। टेटेंटिस का मतलब ये हुआ कि एक टेंशन प्रोड्यूस हुआ, एक्शन पोटेंशियल आया, उसके बाद सीरीज ऑफ ट्विचिंग होती रही और एक पीक पे जाके हमारे पास एक जो हाई फ्रिक्वेंसी की जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोड्यूस हो जाता है। उस कंडीशन को हम टेटेंटिस बोलते हैं, ठीक है। टेटेंटिस इज अ सीरीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल के एक एक्शन पोटेंशियल, एक फाइबर को मोटर न्यूरॉन ने एक फाइबर को एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, उस जनरेशन के बाद वो कंटिन्यूस सीरीज पे वो जनरेट होता रहा और विद हाई पोटेंशियल के साथ। हाई पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि हाई पोटेंसी के साथ, तो उसने एक पीक जो है वो स्लॉट बनाया, जिसको हम टेटेंसिस बोलते हैं। सबमिशन क्या है, सबमिशन माइट बी मोर देन टू और मोर देन टू एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ये हमारे पास एग्जांपल है सिंगल की, ठीक है जी। फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच फाइबर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ switch fibers. Slow twitch fibers contracts more slowly, ठीक है, but sustain longer contraction. All slow twitch fiber are oxidative. जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन उसकी स्लो होती है लेकिन उसकी कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन होती है, ठीक है। और जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है, मोर कॉन्ट्रैक्शन होती है, बट क्या होता है कि उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम होता है वो शॉर्ट होता है। फास्ट ट्विच फाइबर्स जो है हमारे पास नॉर्मली ग्लाइकोलाइटिक और ऑक्सीडेटिव होते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं वो हमारे पास नॉर्मली ऑक्सीडेटिव होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्केलेटल मसल जो है वो
दोनों उसमें हमारे पास होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स भी होते हैं एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स भी होते हैं, बट इट डिपेंड करते हैं कि स्केलेटल मसल्स के वो किस ऑर्गन के स्केलेटल मसल्स है या वो किस पर्टिकुलर एरिया, बॉडी के पर्टिकुलर एरिया का स्केलेटल मसल्स है, वो उसके रेशियो पे डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग के अगर मूवमेंट ज़्यादा चाहिए होती है तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में स्विच जो हमारे पास फास्ट स्लो ट्विच फाइबर्स है वो उसका रेशियो ज़्यादा होगा और फास्ट का कम होगा। इसी तरह जो लेस मूवमेंट वाले एरियाज होते हैं उन उन बॉडी के उस पार्ट के जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें हमारे पास जो है फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होंगे और जो हमारे पास स्लो ट्विच फाइबर है वो कम होंगे। ओके जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मसल्स है, हमने बात की कि मसल्स को एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। और एनर्जी क्या है? एनर्जी हमारे पास नॉर्मली एटीपीज है, एटीपीज है और फॉस्फेट है। जो फॉस्फोराइलेशन है उसके थ्रू हमारे पास एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड होती है, तो हमारे पास मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, नॉर्मली मसल्स जो एनर्जी लेता है वो तीन सोर्सेस होते हैं। नंबर वन जो क्रेटिनिन फॉस्फेटेट होता है, फॉस्फेटिन होता है। नंबर टू ग्लाइकोजिन, हमें पता है मसल इज अ स्टोर हाउस फॉर अ ग्लाइकोजिन, ये इटसेल्फ इसमें ग्लाइकोजिन स्टोर्ड होता है और ये उसी ग्लाइकोजिन के एटीपीज को यूज कर रहा होता है बाय ग्लाइकोलाइसिस। नंबर थ्री ग्लूकोज और अदर फ्यूल, लाइक हम बात कर रहे हैं रिस्पिरेशन की, एरोबिक रिस्पिरेशन की या एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, तो ये तीन सोर्सेस हमारे पास जो है, there is an energy source for muscle contraction। ठीक है जी। नॉर्मली जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है वो मसल्स में प्रेजेंट होता है इन अ बंडल फॉर्म। ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या होता है, ये अपने जो फॉस्फेट कंपोनेंट है उसको डोनेट करता है एटीपी, और एटीपी हमारे पास हमें पता है कि मायोसिन के जो लो कॉन्फ़िगरेशन हेड है उसके ऊपर वो एटीपी अटैच होता है और वो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो कन्वर्ट होता है एडीपी में, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। सिमिलरली जो मसल खुद स्टोरेज जो स्टोर्ड फॉर्म ग्लाइकोजन है उसकी ग्लाइकोलाइसिस कराता है, उस ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है एंड ड्यूरिंग दिस लैक्टिक एसिड हमारे पास फॉस्फेट जो या फॉस्फोराइलेशन जो हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू कन्वर्ट एटीपी। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज और अदर फ्यूल इटसेल्फ जो ग्लूकोज है वो खुद एक सोर्स है एनर्जी का, जो कि फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, या फॉस्फोराइलेशन जिसकी वजह से होती है और एटीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। तो मेन अगर हम बात करें कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जब मसल्स अपने लिए एनर्जी लेता है तो वो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है जो कि अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है मसल्स में। ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को हम मसल्स को बोलते हैं स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। ठीक है, एक्सेसिव जो ग्लाइकोजन है वो मसल्स में ही स्टोर, स्केलेटल मसल्स में ही स्टोर होता है। और इसके अलावा जो ग्लूकोज है जो जिसके थ्रू हमारे पास रेस्पिरेशन होती है और वो भी हमारे पास इस कन्वर्जन में इन्वॉल्व होता है और एटीपी प्रोवाइड करता है। कहाँ पे एटीपी प्रोवाइड करता है? द हेड ऑफ लो कॉन्फ़िगरेशन हेड ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, जो कि बाइंड करता है एक्टिन के साथ और जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है। ओके जी, अब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम ट्रांसफॉर्म मसल्स कंस्ट्रक्शन इन लोकोमोशन। हमारे पास के स्केलेटल जो मसल्स हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं कंट्रैक्शन में, या उससे मूवमेंट कैसे होती है, ये किससे इन इन चीज़ों से स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन मूवमेंट के फॉर्म में कैसे आती है। तो हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स है वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ एंटागोनिस्टिक पेयर्स में विद द मेंबर ऑफ पेयर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर। मतलब बहुत सारे मसल्स फाइबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एंटागोनिस्टिक के एंटागोनिस्टिक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, या आप कह लें कि एक दूसरे के एंटागोनाइज फाइबर बंडल्स होते हैं, जो कि एक एंटी करता है तो दूसरा उसके एक वर्क करता है तो दूसरा उसके अगेंस्ट होता है। इस एंटागोनिज्म मैकेनिज्म के थ्रू ही हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है या लोकोमोशन होती है। ठीक है, ये हम फर्दर अब मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे तो हमें पूरा थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
और skeleton जो the skeleton provide a rigid structure to the muscle attach. जो skeletal है, जो skeleton है वो provide करता है मसल को एक rigid जो structure है उसको form करता है. Skeleton's function is support, protection and movement. Skeleton का function क्या है? बॉडी को सपोर्ट करता है, बॉडी को प्रोटेक्शन देता है एंड मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है. ठीक है जी. अब हम द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल इन मूवमेंट. ठीक है, हम बात कर रहे थे कि मसल्स की जो मूवमेंट है वो एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या करता है, वो लोकोमोशन करता है. जैसे ये ह्यूमन हैंड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे एंटागोनाइज करने के लिए ट्राइसेप रिलैक्स करते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फोर आर्म है वो फ्लेक्सेस होता है, मींस फोर आर्म फोल्ड होता है. इन दोनों के ये एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक रिलैक्स करेगा. इन दोनों के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म ऑफ अ स्केलेटन ड्यूरिंग मूवमेंट या ड्यूरिंग लोकोमोशन आप कह सकते हैं. ठीक है, इसी तरह अगर हमें फोर आर्म फ्लेक्स करना है या फोर आर्म की मूवमेंट करानी है, बैंड करना है, तो हम वी नो कि बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप रिलैक्स करेगा. अब इसी के अगेंस्ट अगर फोर आर्म को एक्सटेंड करना है, रिलीज करना है या फोर आर्म को रिलैक्स करना है, तो हमें पता है कि वहाँ बाइसेप्स जो है वो रिलैक्स होंगे और ट्राइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. इन दोनों के अब ये बंडल्स एक अगेंस्ट, जैसे हमने बोला कि एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म क्या होता है, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं और उन दूसरे के एंटागोनाइज पेयरिंग की वजह से हमारे पास स्केलेटन की जो मूवमेंट है वो अचीव होती है, ये स्केलेटन मूव करता है. तो ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है फोर आर्म की रिलैक्सेशन की, एक्सटेंशन की और रिलैक्सेशन की, कि बैंडिंग कैसे होती है और उसकी एक्सटेंशन कैसी होती है. अगर फोर आर्म बैंड कर रहा है तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ट्राइसेप्स जो है वो रिलैक्स करेंगे. सिमिलरली अगर वो एक्सटेंड करेगा तो बाइसेप रिलैक्स करेंगे, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ओके जी. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज मसल्स उसके नर्वस कंट्रोल एंड ड्यूरिंग मसल्स टेंशन. ओके, थैंक यू क्लास.